Now let us start thermodynamic system. Thermodynamic system. Is it clear? Is it visible? Yes, sir. Okay. Now, what is thermodynamic system? So, a definite quantity of matter bounded by some closed surface is known as a system. कोई सिस्टम क्या है? कोई भी डेफिनेट क्वांटिटी है कोई मैटर की और उसको हम किसी क्लोज सरफेस से बाउंड कर दें तो दैट इज नोन एज ए सिस्टम. ठीक है. फॉर एग्जांपल, a system might be the gas contained in a cylinder with a mobile piston, or it might be the air inside a tire that is being inflated. Clear? तो ये thermodynamic system की बात की है. This is the system simple. Now, state of system. What is state of system? State of system. So this is defined as the value to a sufficient number of variables, and this state of system is basically defined by some specific coordinates like pressure, volume, temperature, and internal energy. These are the coordinates or parameters जो किसी थर्मोडायनामिक स्टेट को डिफाइन करते हैं. ठीक है ना. तो यदि हमें कोई भी थर्मोडायनामिक स्टेट डिफाइन करनी है तो हमें इनका यूज करना है. प्रेशर, वॉल्यूम. हाँ, बड़ी स्क्रीन में कर लीजिए. ठीक है. तो these parameters describing the state of the system are known as thermodynamic variables. So these are thermodynamic variables or thermodynamic coordinates. These are thermodynamic coordinates. Clear? Now let us discuss zeroth law of thermodynamics. Zeroth law. This is a very important law of thermodynamics. Please off your audio. Rahul, please off your audio. अपने ऑडियो ऑफ कर लीजिए आप लोग. Now let us discuss internal equilibrium. So a thermodynamic system is said to be in thermal equilibrium if all parts of it are at the same temperature. सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं that are having the same temperature, सारे के सारे same temperature है पर हैं, then the system is known as in thermal equilibrium, and this temperature is the same as that of the surrounding का temperature और सिस्टम का temperature same है. तो तब हम कह देंगे सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल मींस टेम्परेचर बेसिकली. और एक चीज मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें आपको ध्यान रखना. इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है इट मींस इंटरनल एनर्जी विल हाई. ठीक है. टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी. टेम्परेचर कम हो रहा है सिस्टम का इट मींस उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी. ठीक है ना. If these coordinates, if these conditions are not satisfied, a change of state will take place until a thermal equilibrium is reached. यदि हमारा सराउंडिंग है या टेम्परेचर जो हमारा सिस्टम है, सपोज इनिशियली द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर हैविंग द डिफरेंट टेम्परेचर्स और सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग है. ठीक है. तो वो क्या होगा, ये जो चेंज हो रहा है स्टेट में चेंज तब तक होता रहेगा जब तक कि उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना हो जाए. मींस टेम्परेचर का फ्लो होगा, एनर्जी का फ्लो होगा. जैसे वाटर का फ्लो होता है फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड, ऐसी टेम्परेचर विल फ्लो. टेम्परेचर मींस एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जब तक कि पूरा दोनों तरफ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. तो a change of state here means a change in the thermodynamic state of the system. It does not mean that all a change from solid state to liquid state or gaseous state and other like changes, and in thermodynamics there are known as change of phase. Now we are talking about zeroth law of thermodynamics. Suppose we are having
three systems. We are having three systems. System A, B and C. ये मैंने तीन सिस्टम ले लिए. And the temperature of these system is TA, TB and TC. मैंने ये तीनों सिस्टम ले लिए ना. ये है A, एक है ये B, एक है C. इन तीनों को मैंने एक दूसरे कॉन्टेक्ट में रख दिया इनिशियली, और उनके टेम्परेचर अलग अलग है, TA, TB एंड TC. ठीक है. इफ टू सिस्टम्स, सपोज सिस्टम A एंड B, सिस्टम A एंड B, these two systems are in thermal equilibrium, means temperature of A equal to temperature of B. जो मैंने अभी बात की थी thermal equilibrium की, means temperature of the system will be same. In thermal equilibrium means temperature same है. तो यदि हम बात करते हैं कि सिस्टम A और सिस्टम B दोनों thermal equilibrium में है, it means temperature of A will be equal to temperature of B. And if system B is in a thermal equilibrium with C, means TB equal to TC. ये B सिस्टम C सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तब क्या होगा, TB इक्वल टू TC. तो ये दो चीज यदि मैं देता हूं तो यहां से मुझको ये चीज मिल रही है. इट मींस TA इक्वल टू TB, TB इक्वल टू TC. इट मींस TA इक्वल टू TC. क्लियर? TA इक्वल टू TC मींस सिस्टम A विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम C. क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास तीन सिस्टम है और इफ एनी टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम, देन दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. ठीक है. मान लिया मेरा, हम ये भी कह सकते हैं कि दिस सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद C. सिस्टम B is in thermal equilibrium with C, then A will be in thermal equilibrium with B. ये भी हम कह सकते हैं. ठीक है ना. तो मीनिंग सीधे सीधे बात हुई, सपोज यू आर हैविंग थ्री सिस्टम्स और उनमें से कोई दो सिस्टम थर्ड के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तब वो दोनों सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. क्लियर? दिस इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. सपोज यू आर हैविंग थ्री सिस्टम्स A, B, E. If system A is in thermal equilibrium with system B, means temperature of A equal to temperature of B, and system B is in thermal equilibrium with system C, means TB equal to TC, temperature of B system equal to temperature of C system. ये दो चीजें हमने देखी. तो यहां से हम देखेंगे TA equal to TB, TB equal to TC means TA equal to TC. TA equal to TC means system A will be in thermal equilibrium with system C. So this is known as zeroth law of thermodynamics. And this statement is called the zeroth law of thermodynamics and forms the basic of concept of temperature. This is the concept of temperature. Clear? अब हम टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करते हैं? हम कैसे कहते हैं कि टेम्परेचर है? बेसिकली हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सिस्टम इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. यदि मैं किसी के रेस्पेक्ट में किसी बॉडी का टेम्परेचर या किसी सिस्टम का टेम्परेचर मेजर करता हूं, ठीक है ना, और तो वो जो टेम्परेचर वो क्या देगा, बेसिकली कोल्डनेस और हॉटनेस की कोई सिस्टम किसी के रेस्पेक्ट में कितना गर्म है, हॉट है, ठीक है ना, या कितना कोल्ड है. तो हम हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों ही हमारा टेम्परेचर डिफाइन करता है. अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट की. ये इंपॉर्टेंट है, वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इक्वेशन ऑफ स्टेट. इक्वेशन ऑफ स्टेट. नाउ इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द थर्मोडायनामिक स्टेट, हम जब भी बात करेंगे स्टेट की, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मोडायनामिक्स, thermodynamic state of the system. So if in order to describe the thermodynamic state of a system contain variables, certain variables are required.
ठीक है, टू डिस्क्राइब द थर्मोडायनामिक्स स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। वो क्या है? आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। बट इनिशियली हम यहां पे बात करेंगे पी, वी एंड टी की। ठीक है ना? इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए हमारे पास ये 3 पैरामीटर नेसेसरी है, पी, वी एंड टी। अब इसको देखिए, हम लोगों ने if function means relation between these 3 parameters, pressure, volume and temperature, this is the equation of state. The relationship between these 3 parameters is the equation of state. तो यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन ऑफ पी, वी, टी। तो कोई फंक्शन होगा, मतलब इनमें कोई रिलेशन होगा, वो आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट डिफाइन करेगी। तो दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे हमने आप लोगों ने पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू आर टी, दिस द इक्वेशन ऑफ स्टेट, वेल नोन इक्वेशन ऑफ स्टेट है, आप लोगों ने सबने पढ़ा है। ठीक है, पी वी इक्वल टू आर टी, वेयर पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर ग्राम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब यदि ये तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है जो हमने पढ़ा है, बट हम पढ़ते हैं एक वांडर वाल्स गैस इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज फॉर 1 मोल। फॉर n मोल दिस इक्वेशन विल बी पीवी इक्वल टू nRT। क्लियर? पीवी इक्वल टू nRT। नाउ वांडर वाल्स गैस इक्वेशन, वांडर वाल्स गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये इक्वेशन होती है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इक्वल टू RT। दिस इज वांडर वाल्स गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। हियर A and B are some constants। ठीक है, A and B are these are some constants। और इसमें हम यूनिट का भी पता लगा सकते हैं, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ ए एंड बी। अब यहां पर हम देखें, हमने प्रेशर में ये टर्म ऐड किया, इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्म की यूनिट भी वही होगी जो प्रेशर की है, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन मल्टीप्लाई अलग अलग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लीकेशन में तो अलग अलग यूनिट हो सकती है, लेकिन जब भी हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो क्वांटिटीज विल बी सेम। तो मीनिंग ये हुआ कि इसकी जो डायमेंशन है प्रेशर की, या जो यूनिट है, वही हमारी इसकी यूनिट होगी, ए अपॉन बी स्क्वायर की। तो हम यहां से एक यूनिट निकाल सकते हैं। एक यूनिट कितनी आएगी यहां से? ए अपॉन वी स्क्वायर की जो यूनिट है वो यूनिट आएगी जो हमारे प्रेशर की है, और प्रेशर कितनी होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की यूनिट है, तो यहां से हमारा ए की यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये वी की हो जाएगी मीटर क्यूब। यदि वॉल्यूम ले हम तो मीटर पावर 6, तो कितनी आएगी? न्यूटन मीटर पावर 4, कुछ वैल्यू आएगी। ऐसे यहां पर हम वॉल्यूम में से बी को माइनस कर रहे हैं, इसका मीनिंग हुआ द यूनिट ऑफ बी, दिस कांस्टेंट बी विल बी सेम एज दैट ऑफ वॉल्यूम, मतलब कितनी होगी? मीटर क्यूब। तो दिस इज फॉर 1 मोल। फॉर n moles this van der Waals equation becomes P plus n square A upon V square into V minus NV equal to nRT। This is for n moles। ठीक है, ये हमने van der Waals इक्वेशन की बात की। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, suppose if an isolated system is left to itself, the pressure and temperature at a given point approach to a steady value। अपने माइक आप ऑडियो ऑफ कीजिए। कैसे होता है? when these quantity have attained a steady value, then the system is to be said in to be thermodynamic equilibrium। equilibrium
अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को हमने कई कैटेगरी में डिवाइड किया. सिस्टम इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मस्ट fulfill the following conditions. One, mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium. इसमें क्या होता है? For a system to be in mechanical equilibrium, there should be no unbalanced forces existing between different parts of the system or between the system and the surrounding. Means there should be no force difference between the surrounding and the system or between the different parts of the system. Means system के हर part में force should be equal, same, or we can say the force on the system and the force in the surrounding should be same. मतलब सब जगह force same होना चाहिए, equal होना चाहिए. That is known as equilibrium, mechanical equilibrium. Similarly, second is thermal equilibrium. And thermal means temperature. Thermal equilibrium. तो इसमें क्या होना चाहिए कि for a system to be in thermal equilibrium, the temperature at all parts of the system must be same. System के हर part का temperature same होना चाहिए. ठीक है? The temperature at all parts of the system must be the same, or should be identical with that of the surrounding. Surrounding और system का temperature same होना चाहिए. That then we can say that system is in thermal equilibrium. Now third one is chemical equilibrium. Chemical equilibrium. So if system is in chemical equilibrium, for a system to be in chemical equilibrium, so the composition of the system should remain fixed and definite. Clear? तो ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कुछ है मैकेनिकल. जब आप फोर्स यदि हम प्रेशर की बात करते हैं, फोर्स और प्रेशर, फोर्स शुड बी सेम. इन थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर शुड बी सेम. इन केमिकल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन शुड बी सेम, और कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम शुड रिमेन फिक्स्ड एंड डेफिनिट. A system which satisfies all these three equilibria or uniformity of pressure, temperature and chemical composition is said to be in thermodynamic equilibrium. अब हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस की. ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होती है, और एक्सटर्नल एंड इंटरनल वर्क की हम बात करेंगे. इसमें जैसा हमने पढ़ा भी है सिंपली, बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट ds vector. This is the basic definition of work done. Force, this is the scalar product or dot product of force and the displacement vector. This will give you the work. ठीक है? यदि हमें total work निकालना तो you just we can integrate to find out the total work. So work is defined as the way by which a system may exchange energy with its surrounding. If force F produces a very, very small displacement ds, then the work done is defined in terms of dot product of these two vectors, F vector dot ds vector. If a force is exerted by the system as a whole of surrounding and a displacement take place, the work done is done either by the system or on the system. अब ये चीज देखनी है हमें, work that is done either by the system or on the system is called external work. For example, a gas contained in a cylinder at uniform pressure. ठीक है, हमने किसी सिलेंडर में गैस ले ली यूनिफॉर्म प्रेशर पर. अब हमने क्या किया कि उसको एक्सपेंड कर रहे हैं. while expanding pushes the piston out. जब गैस में एक्सपेंशन होगा तो पिस्टन क्या आएगा, पिस्टन बाहर की तरफ आएगा. सिंपल समझिए आप, जो साइकिल के टायर में जो ट्यूब में जो एयर भरने वाला जो प्रेशर पंप होता है, उसमें आप देखिए उस पंप में क्या होता है, जब गैस का whenever there will be expansion of the gas, तो पिस्टन क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा. ठीक है, और उसमें यदि हमें ट्यूब में हवा भरनी है
तो वी हैव टू कंप्रेस द सिस्टम, हम सिस्टम को कंप्रेस करेंगे, ठीक है। कंप्रेस करेंगे मींस उसको जो गैस है गैस का हमारा कंप्रेशन होगा, ठीक है। फिर हम उसको छोड़ेंगे तो पिस्टन ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द गैस। तो इस तरह से सिस्टम में वर्क होगा। अब दो कंडीशन यहां पर हुई, इनिशियली जब व्हेन एवर देयर इज द एक्सपेंशन ऑफ द गैस, तो जब हम पिस्टन को ले रहे हैं तो जब गैस का एक्सपेंशन होगा तो पिस्टन अपने आप ही ऊपर की तरफ आता है, ठीक है ना। पिस्टन अपने आप ही ऊपर की तरफ आता, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मींस वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द गैस, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। क्लियर? इन दिस केस वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ये ध्यान रखना आपको कि पॉजिटिव कब होता है वर्क डन और नेगेटिव कब होता है। तो वेन एवर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज पॉजिटिव। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज नेगेटिव। जब हम गैस में, जब हम टायर में हवा भरेंगे, ठीक है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, पिस्टन को हमें दबाना पड़ता है, ठीक है। मींस पिस्टन को दबा रहे हम, यानी गैस का क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो उसमें बाहर से वर्क करना पड़ रहा है बाई सम एक्सटर्नल फोर्स। तो इन दिस केस वर्क विल बी नेगेटिव। क्लियर है? तो ध्यान रखना। अब हमने एक चीज पढ़ी है, P इक्वल टू एफ अपॉन ए, P इक्वल टू एफ अपॉन ए, रिलेशन बिटवीन फोर्स एरिया, जिस एरिया पर फोर्स काम कर रहा है, तो यहां से हम प्रेशर निकालते हैं। तो यहां से देखिए आप, हमारे पास फोर्स आ जाएगा P इंटू ए, ठीक है। यहां देखिए आप, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया इफ ए इक्वल टू 1, P इक्वल टू एफ। तो मीन फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। अब इसी फॉर्मूले को आप देखिए जो हम फॉर्मूला ले रहे थे। नाउ सपोज हम ये मान के चल रहे हैं, इफ नाउ वी अलाउ द गैस ऑफ द सिलेंडर टू एक्सपैंड, एक्सपेंशन हो रहा है, द पिस्टन मूव्स आउट बाय ए स्मॉल डिस्टेंस ds, द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी fds। अब आप कहेंगे कि हमने तो अभी लिखा था f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो जब मेरा गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, पिस्टन जो मूव कर रहा है और उस पर जो फोर्स लग रहा है, दोनों एक डायरेक्शन में, मींस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एंड f डॉट ds इक्वल टू f ds cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस केस में थीटा विल बी 0 जब गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पर जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल वर्क डन हो गया हमारा, cos 0 इक्वल टू 1। यहां पर हमने फोर्स की वैल्यू रखी, हमने जो फोर्स हमने ऊपर लिखा था ये सिंपली पी ए डी एफ। इस चीज को देखिए आप, एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो एरिया और डिस्टेंस ये क्या बन गया, पूरा वॉल्यूम। यदि आप ऐसे समझिए, सपोज ये मेरा यहाँ पे गैस है, इसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो पिस्टन है, ये इधर मूव हो रहा है, पिस्टन पर फोर्स इधर ही तो लग रहा है, गैस लगा रही है इसी तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, ठीक है ना। तो सपोज क्या, यदि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यदि हम बात कर रहे हैं, दिस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, ये एरिया होगा, तो ये टोटल मेरा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, तो P dV आ गया। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इस वॉल्यूम के लिए, dW इक्वल टू P dV। अब आपको टोटल वर्क डन यदि निकालना हो तो फॉर ए डेफिनेट चेंज इन वॉल्यूम द प्रेशर विल चेंज एंड द वर्क डन इज टू फाउंड बाय इंटीग्रेशन, दैट इज dW इक्वल टू, यू जस्ट इंटीग्रेट dV। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV। तो हम यहां से लिमिट लगाकर, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट लगा के हम यहां से वर्क डन निकाल सकते हैं। क्लियर? Now let us discuss internal energy of the system. Internal energy of the system. Clear? Now every thermodynamic system has within itself a definite quantity of energy. For instance, a liquid freezes into a solid
yielding heat energy, हीट एनर्जी। ठीक है, कोई लिक्विड है तो वो क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, तो फ्रीज होगा तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो उसमें क्या होगा, वो यील्डिंग हीट एनर्जी, एनर्जी से एक होगा। सेकंड, ऐसी दूसरा है, ले सकते हैं एग्जांपल, जिंक एंड कॉपर सल्फेट इन ए डैनियल सेल रिएक्ट प्रोड्यूसिंग इंटरनल एनर्जी। और ये भी ले सकते हैं, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस एक्सप्लोड्स प्रोवाइडिंग मैकेनिकल एनर्जी। तो ये सब क्या है, हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम की। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी कि दिस इज द इंटरनल एनर्जी मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी possessed by a body or possessed by a system by virtue of its molecular constitution and the position of these molecules। तो जो इंटरनल एनर्जी हम कैसे डिफाइन करेंगे, इंटरनल एनर्जी may be defined as the energy possessed by a body or by a system by virtue of its molecular constitution and the position of these molecules। This is the definition of internal energy and unit will be energy है, तो यूनिट वही होगी जो एनर्जी की होती है, जूल और आर्क्स। ठीक है, अब हम लेते हैं, नाउ लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड thermodynamic system subjected to external pressure, external force। Now let an amount of work, suppose W, I to F, I for initial, F for final, we done on the system in going from state I to final, initial state to final state। ठीक है, बल्कि इससे पहले मैं एक चीज और बताऊं जो बढ़िया रहेगा, एक चीज हम डिस्कस करते हैं, हम कॉन्सेप्ट ऑफ हीट की लेकर चलते हैं। व्हाट इज हीट, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। तो फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम इज नोन एज, इज कॉल्ड हीट। हीट क्या बेसिकली टेम्परेचर से लिंक्ड है। ठीक है, जहां पर ज्यादा टेम्परेचर होगा उसकी हीट ज्यादा होगी, कम टेम्परेचर है तो हीट कम होगी। तो हीट, देयर विल बी फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो मींस द फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम one body to another on account of temperature difference between them is called heat। Clear? तो whenever there will be temperature difference तभी एनर्जी का फ्लो होगा, और जब टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ द एनर्जी। तब हमारा सिस्टम क्या होगा, इन थर्मल इक्विलिब्रियम, हर पार्ट्स पे इसके टेम्परेचर सेम होगा। अब हम बात करते हैं, ये अभी हमने बताया था वर्क डन, W इक्वल टू पी डीवी, ये फॉर्मूला भी हमने लिया था, W इक्वल टू पी डीवी टोटल वर्क डन निकालने के लिए। यहाँ पे क्या, V इज वेरिएबल, P इज कांस्टेंट प्रेशर, V इज वेरिएबल, सपोज इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2। ठीक है, तो यहां से हम वर्क डन निकाल सकते हैं।
अब इसमें हम बात कर लेकर चलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम, क्योंकि इसकी हमें जरूरत भी पड़ेगी जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स में आपको वर्क डन निकालना होगा, कुछ में change in internal energy, and in some cases you have to find out initial internal energy or final internal energy or work done and so on. तो हम ये बात करते हैं व्हाट इज इंडिकेटर डायग्राम। तो इंडिकेटर डायग्राम बेसिकली क्या है? इट इज जस्ट ए ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम में जो ग्राफ है दैट इज सिंपल इंडिकेटर डायग्राम। तो दिस इज ए ग्राफ बिटवीन प्रेशर and volume of a system undergoing an operation. Now it is used to find out the indicated horsepower of an engine and provide us mean to represent the working of an engine and to calculate the work obtained from it. अब इसको हमने ये लिया, सपोज दिस इज ओरिजिन, एक्स एक्सिस पे मैंने वॉल्यूम ले लिया, वाई एक्सिस पे प्रेशर ले लिया। मेरी कोई इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल स्टेट है ए, जो हमने आई और एफ लिखी थी इनिशियल फाइनल, तो आप ए ले लिया। मान लिया सपोज मैं बी स्टेट में आ गया हूं, दिस इज एन ऑपरेशन ए टू बी, ठीक है ना। तो ध्यान देना दिस इज वॉल्यूम एक्सिस। वॉल्यूम एक्सिस पर हम क्या करेंगे, वी जस्ट ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑन द वॉल्यूम एक्सिस। तो ये जो एरिया है, द एरिया इनक्लोज्ड, suppose this is C, this is D, so this area enclosed by A, B, C, D, it will give you the amount of work done in operation A to B। A to B में हम गए तो कितना वर्क हमें निकलना होगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स इन दिस ऑपरेशन सपोज दिस वॉल्यूम इज V1, यहाँ के कोरोस्पोंडिंग V1 है, यहाँ पर वॉल्यूम भी V2 है। तो हम कहाँ से गए, इन दिस ऑपरेशन ए टू वी, जब हम ए से वी की तरफ गए तो इनिशियल वॉल्यूम इज V1, फाइनल वॉल्यूम इज V2। मींस इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम V1, लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज V2 एंड PdV इक्वल टू एरिया, इनक्लोज एरिया ऑफ A, B, C, D. So from indicator diagram, we can calculate work done. Clear? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, डायग्राम से पता चल रहा, मैंने बताया था इन व्हाट आर द केसेस वेयर वर्क डन इज पॉजिटिव और वर्क डन इज नेगेटिव। एक केस में पहले बता चुका हूं। यहाँ पर फिर एक चीज देखने को हमको आ रही है, whenever there will be expansion in the gas, expansion in the gas means volume increases, gas expand होगी मतलब volume बढ़ेगा। तो in this case work done will be positive because work is done by the system, work system या gas अपने आप ही करेगी इन एक्सपेंशन। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि हम इस केस में देखें पर्टिकुलरली, वर्क डन विल बी पॉजिटिव, डब्ल्यू विल बी पॉजिटिव, ठीक है। यदि हम गैस को कंप्रेस करते हैं, इन कंप्रेसिंग द गैस, तो वर्क इज डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, हमें कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, अलग से प्रेशर लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, गैस को कंप्रेस करने में। तो इन द केस ऑफ कंप्रेशन ऑफ द गैस मींस वॉल्यूम डिक्रीजेज, और कंप्रेशन के केस में मैंने बताया था मींस वर्क इज डन ऑन द गैस, इन दैट केस वर्क डन इज नेगेटिव। मींस व्हेनेवर वॉल्यूम डिक्रीजेज वर्क डन विल बी नेगेटिव। वो यहीं से आ जाएगा लिमिट से। जब आप उल्टा चलेंगे, बी टू ए की तरफ चलेंगे, ठीक है, बी से ए की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या होगी V2, यहाँ पर V2 हो जाएगा, और फाइनल लिमिट क्या होगी V1। फिर लिमिट चेंज कर लेगा, माइनस साइन आ जाएगा, अपर लोअर, लोअर अपर बन जाएगी, सिंपल है। अब इधर देखा, नाउ लेट अस डिस्कस, ये क्लियर होगा कि वर्क इज नॉट थर्मोडायनामिक फंक्शन like pressure or temperature or internal energy. Now first law of thermodynamics. First law of thermodynamics.
इसको देखा हमने। अब इसके लिए हमें एक चीज हम ग्राफ से करते हैं, ग्राफ से अगर समझ में आएगा। इससे पहले मैं एक चीज आपको ये बताऊं, ये फर्स्ट सलाह हमने आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा भी है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Q is the amount of heat absorbed by the system or amount of heat given to the system. W is the amount of work done by the system, and delta U is the change in internal energy of the system. Delta U means final energy minus initial energy. Always ध्यान रखना, जब हम डेल्टा यू की बात करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, तो दिस विल बी फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। इसको अब देखा हमने। और Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू, या हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखें, फॉर ए स्मॉल अमाउंट डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। ठीक है, ये सेम चीज हुआ। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द डिफरेंशियल फॉर्म, दिस द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, and which may be stated that in all transformations, जितने भी operations होंगे, transformation होंगे, the energy due to heat units supplied must be balanced by the external work done plus the increase in the internal energy। जो एनर्जी सिस्टम ने ली वो दो पार्ट में खर्च हुई, एक तो इन एक्सटर्नल वर्क, ये जो इसने एनर्जी ली तो कहां पर एक्सपेंड, दो कामों में खर्च हुई, तो दो पार्ट्स में, एक तो वर्क डन, एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये दोनों में। तो दिस इज नोन एज स्टेटमेंट, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखिए, हम इसको, इसका प्रूफ हम लोगों ने कर रखा है, तो प्रूफ बताने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसका प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूं। सपोज दिस इज वॉल्यूम, दिस इज प्रेशर। मैं पहले इसको बना ले रहा हूं डायग्राम को, जिससे समझने में आसानी रहेगी। दिस इज स्टेट ए, बी, सपोज दिस इज सी, दिस इज डी। नाउ सपोज हम जा रहे हैं फ्रॉम स्टेट ए टू बी। ठीक है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम देयर आर थ्री वेज, देयर आर थ्री पाथ्स इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। एक तो डायरेक्ट ए टू बी, एक है थ्रू सी, ए सी, देन सी टू बी, और एक थर्ड पार्ट ये है, ये वाला पाथ है थ्रू डी, ए टू डी, डी टू बी। तीन पाथ्स हैं, तो नेचुरली तीनों पार्ट्स में वर्क डन भी डिफरेंट होगा। तीन रास्ते हैं, तो तीनों रास्तों में क्या होगा, वर्क डन डिफरेंट होगा। वो वर्क डन मेरा ये था डी डब्ल्यू, मान लिया था हमने। ठीक है ना, यहां पर इंटरनल एनर्जी क्या होगी, यूवी फाइनल। इस पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी यूए, इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो हियर दिस डी यू इज यूवी माइनस यूए। क्लियर है इस केस में? तो तब ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ये कहां पर हुई, डी डब्ल्यू प्लस डी यू। डी, इस तरह की जब प्रॉब्लम्स भी आएगी तो ध्यान रखना, इसमें हम ए से बी की तरफ गए, उसमें मैं साइन का भी ध्यान न करूंगा, डब्ल्यू, वेदर डब्ल्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन का हमें ध्यान रखना है। तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें बेस प्रॉब्लम इंपोर्टेंट है। नाउ लेट अस डिस्कस स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस। specific heats of a gas। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, Q इक्वल टू mc डेल्टा T। m is the mass of the gas, c is the specific heat,
Delta T is the change in temperature. Q is the amount of heat absorbed by the system here given to the system. Now from this equation, C equal to Q upon M delta T. If mass is unit and this temperature difference is 1 unit degree centigrade, in that then C will be equal to Q. तो Q ये C amount of heat के equal है यूनिट मास को जो दी हीट और जो कहां पर खर्च हुई बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड बाय यूनिट हीट. तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू यूनिट मास ऑफ द गैस to increase the temperature by unit. Clear? This is the definition of specific heat.